हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 528th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durga Wealth Manager, my home partner SDPL, my inside home partner is Inside Story. A big thank you to my Atmanirbhar Bharat partner Servicing Wala and also my hospital partner which is One Healthcare by Dr. Sameer Arbat. Also to mention Siddhi, which is a brand of Priya Acharya, the celebrity tarot card reader. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी। बहरहाल आज की एक खास मुलाकात है, क्योंकि ये मुलाकात 4 या 5 सालों के बाद हो रही है। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहा हूँ जो मेरे आदर्श हैं, और कई बार उनकी बातें, उनके मैसेजेस, उनके कोट्स, उनके वर्ड्स ऑफ विजडम इंस्पायर करते आए हैं। मेरे साथ नागपुर शहर की एक जानी मानी हस्ती, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बट मोर देन दैट ही इज़ एन ऑथर, ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर एंड समवन हु नोज लाइफ वेरी क्लोजली। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली CA हेमंत लोढ़ा सर। हेमंत सर, गुड इवनिंग। Good evening, yes, and really pleasure to see you after so long. So it's an honor. Whenever I meet you, your blessings really help, and so do your words of wisdom. Sir, today we're talking about 11 pillars of life. Yeah. जिंदगी के कुछ ऐसे 11 ऐसे अनकही बातें या अनसमझी बातें या कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बातें जो 11 पिलर्स ऑफ होलिस्टिक हैप्पी लाइफ बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि सर आप हमें पथ प्रदर्शित करें। Thank you, Yash. Actually, the title you gave in the say promotion material was the 11 pillars of life. जी। But I will little modify it. 11 pillars of holistic happy life. So here the 4 words are very important. The pillars, holistic, happy, and life. Now, why I have given the name pillars actually, normally what happens that if you see any building, then the building is standing on the pillars, and if one of the pillar is not good or weak or something, then we cannot make our life very strong. So all these 11 pillars which I have researched after giving a lot of thought process, I would like to present you and to our audience actually. Another word is the holistic. Holistic means the full spectrum of the life. कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे महात्मा गांधी वाज फोकस्ड ओनली ऑन वन थिंग, दैट मेरे को देश को आज़ादी कैसे दिलानी है, मुझे मेरे देशवासियों के लिए क्या करना है, या सचिन तेंदुलकर में भी फोकस्ड ओनली ऑन द क्रिकेट, बट ही में से फॉरगेट द अदर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. So the holistic life means there are many aspects of the life, maybe thousands, but main important are the health, the work, the relationship, the spirituality, the society. So those I have tried to cover in these 11 pillars, the holistic aspect of all the life. Third word important is the happy. Because if the life is maybe holistic or whatever it is, but if it is not happy, then our life may not be that good, and we may always be in the stress or the in problem or sickness or whatever it is. And the life means anything between say birth and the death is entire life, and we go through many phases. Okay, so to start with, actually the first pillar what I would like to tell you, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि निरोगी पहला सुख निरोगी काया। तुमने भी कई बार सुना होगा। तो हमारे जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, कितना भी से फेम आ जाए, या कितना भी अच्छा वर्क हो, सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो जब तक ये शरीर है ना, वो शरीर की हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ एज वेल एज द मेंटल हेल्थ, दोनों अच्छी होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों अच्छी नहीं होगी तो हम जो भी हमारे लाइफ में है उसको हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे नेग्लेक्टेड जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी में वो भी हेल्थ ही है, क्योंकि हम पैसे, पावर और फेम और इन चीज़ों के पीछे इतना भागते रहते हैं सर्वाइवल के पीछे कि हम हेल्थ को हमेशा इग्नोर करते हैं। आपने देखा होगा
कि ज़्यादातर 1 जनवरी को लोग बाग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल में मतलब 1 घंटा वॉक करूंगा, 1 घंटा योगा करूंगा, 1 घंटा टेनिस खेलूंगा, और वो 5, 7, 10 तारीख या 31 जनवरी आते वो ख़त्म हो जाता है। सो ये हेल्थ को बड़ा नेग्लेक्ट करते हैं, और हेल्थ को अगर हमको ठीक रखना है तो उसके 3-4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि एक तो हम 1 घंटा मिनिमम कैसे हेल्थ पे दे सकें। मैं 1 घंटा इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं किसी को कहूँगा कि आपको यार 23 रुपया इन्वेस्ट करना है, 1 रुपया इन्वेस्ट करना है और आपको 23 रुपया रिटर्न मिलेगा, तो हर कोई करना चाहेगा। तो वही आज हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं, अगर 1 घंटा हम हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें तो हमारे जो 23 घंटे हैं वो बड़े खूबसूरत जाएंगे। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 3-4 चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, उसमें है 1 घंटा अपना एक्सरसाइज या उस पर हेल्थ पे फोकस करना। दूसरा है खाना, ढंग से खाना। लेकिन आजकल हम इतना जंक फूड खाते हैं कि खाने पे फोकस ही नहीं रहता है, और हम हमारे शरीर को, जैसे एक पेट्रोल वाली गाड़ी है उसके अंदर हम घास तेल डाल रहे हैं, इस तरह का सीन हो जाता है। और तीसरा है साउंड स्लीप, और अच्छी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। और हम आजकल जो हमारा रूटीन हो गया है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कोई रूटीन ही ढंग के नहीं होता है, और वी स्पॉइल आवर हेल्थ। सो ये पहला पिलर के बाद में मैं सेकंड पिलर पे जाना चाहूँगा। मैंने सेकंड पिलर लिया है लर्न मस्ट। नाउ लर्न मस्ट मीन्स व्हाट? आपने देखा होगा कि एक जब बच्चा पैदा होता है वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, स्कूल में जाता है सीखता है, कॉलेज में जाता है पढ़ता है सीखता है, और फिर जॉब ज्वाइन कर लेता है। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने जॉब ज्वाइन करने के बाद में सीखना छोड़ दिया है। सिर्फ वो अपना जो फील्ड है, अपना जो प्रोफेशन है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, अदरवाइज वो कुछ सीखना ही भूल जाते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड नहीं करते हैं। तो सीखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आज हम एवरी डे सुबह से शाम तक हज़ारों डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन डिपेंड्स ऑन आवर क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड क्वालिटी ऑफ विजडम। अगर हमारी नॉलेज पुअर होगी, हमारा विजडम पुअर होगा, तो हमारे डिसीजन अच्छे नहीं हो सकते, और डिसीजन अच्छे नहीं होंगे तो हमारे परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए लर्निंग ज़िंदगी भर रहना ज़रूरी है, जिससे हम हमारे डिसीजन की क्वालिटी को बेटर कर सकें। सो सेकंड पिलर में लर्निंग मस्ट लेना चाहूँगा। और तो हेल्थ कवर कर लिया मैंने, फिर मैंने लर्निंग कवर कर लिया। तीसरा मैं कवर करना चाहूँगा रिलेशनशिप और लव ऑल। नाउ मेरे को बहुत से जने कहते हैं कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है लव ऑल। मैं समझता हूँ कि लव ऑल पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लव नहीं कर सकते किसी को, प्रेम नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइक तो कर सकते हैं। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो आप न्यूट्रल तो रह सकते हैं, लेकिन आप डिसलाइक क्यों करते हैं? या वाई देयर शुड बी ए प्लेस फॉर द से हेट इन योर लाइफ? बिकॉज द हेट do not spoil the other person, it spoil your mind also. लोग बाग कहते हैं कि our enemies they occupy more space in our rent free space in our mind. So one must not hate anyone, one must not dislike anyone. So I will say कि love all but hate none. That is very very important. और दूसरा इसका कारण ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज हम जब बचपन से जब जन्म लेते हैं उसके बाद में हमारी ज़िंदगी में नए नए लोग आते रहते हैं, नए लोग आते हैं, नई रिलेशनशिप क्रिएट होती है। और अगर हमारी रिलेशनशिप खूबसूरत होगी तो हमारा दिन भी अच्छा जाएगा, हमारा समय अच्छा जाएगा, और हमें अननेसेसरी टेंशन और स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, उसको अच्छी होने के लिए लव, प्रेम या मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। मैं चौथा जो पिलर लेना चाहूँगा वो है थिंक पॉजिटिव। नाउ थिंक पॉजिटिव को मेरे को बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीवन टॉक्स अबाउट दिस। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सोच कई बार नेगेटिव होती है, बट ऊपर ही ऊपर हम पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो थिंक पॉजिटिव में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो, अगर आप देखेंगे कि वी मोस्टली कैनॉट कंट्रोल आवर थॉट्स. Thoughts keep coming in our mind, and the thoughts are of 3 type of thoughts, I will say. One is the positive thoughts or good thoughts, one is a negative thought or a neutral thought.
सो न्यूट्रल थॉट्स भी रहते हैं कि भैया हमें कोई रास्ते में मिलता है जिसको हम नहीं जानते, या हमने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी लाइक मैक्सिको में ये हो गया, वेनेजुएला में ये हो गया, तो हमारे थॉट्स न्यूट्रल रहते हैं, बट अदरवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव रहते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति में 100% पॉजिटिव थॉट हो या 100% नेगेटिव थॉट हो, बट अगर 50% और मोर थॉट्स पॉजिटिव है तो वी विल कॉल दैट पर्सन एज ए पॉजिटिव पर्सन, एंड 50% से ज़्यादा नेगेटिव थॉट है तो विल कॉल हिम एज ए नेगेटिव पर्सन। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, द रीज़न इज़ कि व्हाट यू थिंक लेटर ऑन इट बिकम्स योर वर्ड्स, व्हाट यू टॉक इट बिकम्स योर एक्शन, what actions you keep repeating it becomes your habit, and what habits you keep repeating then it becomes your character, and your character shapes your destiny. So इसलिए thoughts is very very important to go ahead in or to make the life much better. Now उसके बाद में मैं लेना चाहूँगा ड्रीम बिग जी। ओके तो मैंने पहले हेल्थ को कवर किया, उसके बाद में इंटेलेक्ट को कवर किया, उसके बाद में रिलेशनशिप को कवर किया, और थिंक पॉजिटिव में मैंने थॉट्स को कवर किया। अभी मैं कहूँगा कि ड्रीम बिग, ये मैंने कहाँ से उठाया था, मेरे को आज भी याद है कि ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स बैक आई वॉज वर्किंग इन मुंबई इन मेकर चैम्बर 11 के अंदर मेरा ऑफिस था, मेकर चैम्बर 4 में, और 11th फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, और हमारे 2 फ्लोर नीचे धीरूभाई अंबानी का ऑफिस था। और मैं एक बार देखने चला गया कि भाई ये ऑफिस कैसा है क्या है, क्योंकि उस समय रिलायंस का बड़ा नाम होना चालू हो गया था। तो वहाँ पे रिसेप्शन के पीछे लिखा हुआ था थिंक बिग। सो मतलब उनकी थ्योरी यही थी कि हाउ यू कैन थिंक बिग। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी लाइफ है, दिस इज लिमिटेड बाय आवर थिंकिंग और द ड्रीम्स और द टारगेट्स विच वी सेट। सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ड्रीम्स डिफाइंड होते हैं और उस ड्रीम्स पे वो काम करते हैं। हमारे गोल्स डिफाइन नहीं होते हैं, हम गोल्स और टारगेट्स और पर्पस है उसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो अगर हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा बन सकते हैं। अगर हमारी सोच ही छोटी होगी तो बड़ा बनना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच से हम ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकते। तो लेकिन ड्रीम ही नहीं रहे, तो इसलिए मैं छठा जो पिलर लेना चाहूँगा वो है एक्ट क्विक। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, ड्रीम मतलब सपने देखते हैं, लेकिन एक्शन लेते ही नहीं हैं। तो एक्शन नहीं लेंगे तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे, लेकिन वो और एक्शन लेंगे तो इतना डिलेड एक्शन लेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। सो एक्शन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं उसके बिना आप मतलब कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। बिना एफर्ट्स के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सो एक्ट क्विक होना ज़रूरी है बहुत, मतलब और एक्शन जो हम ले रहे हैं उनकी मतलब उनके पीछे लॉजिक होना ज़रूरी है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसके पीछे प्लानिंग होना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग होना ज़रूरी है। सो क्विक एक्शन इज़ द मस्ट फॉर द अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। 7th आई थिंक 6 पिलर हो गए मेरे। 7वां पिलर जो मैं लेना चाहूँगा वो है एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। मैं अपनी जो लेक्चर्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स, वहाँ पे मैं कई लोगों को ये क्वेश्चन करता हूँ कि सपोज यू हैव गॉट डाउन एट ए दादर स्टेशन इन मुंबई and you have to go to Malad or somewhere and you take a taxi. What you expect from a taxi वाला? नॉर्मली लोग कहेंगे कि हमारे से सही किराया चार्ज करे, हम टैक्सी साफ़ सुथरी हो, गड्ढे वड्ढे में नहीं लेके जाए, इस तरह से इस मतलब छोटे से छोटे रास्ते से लेके जाए, जल्दी से जल्दी हमको पहुंचा दे। इससे ज़्यादा एक हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप जैसे ही बैठते हैं और वो आपको एक पानी की बोतल देता है कि भाई साहब रास्ता लंबा है, आप को प्यास लगी होगी, आप दूर से आए हैं, आप पानी पीजिए, आपको 4 तरह के अखबार देता है कि आप पढ़ लीजिए, रास्ते में काफ़ी समय लगेगा, आपको पूछता है कि साहब मैं गाना लगाऊं या नहीं लगाऊं, या कौन सी लैंग्वेज के अंदर लगाऊं, या कौन सी चैनल आपको पसंद है, और इस तरह से अगर वो आपसे संवाद करता है और आपको एक फैसिलिटी जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है अगर वो कंटिन्यूस देता रहेगा, तो आप जब उतरेंगे तो उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा टिप भी दे सकते हैं। सो ये जो एक्सीड द एक्सपेक्टेशन है हर रोल में पॉसिबल है। आज हम ज़िंदगी में हमारे 50 रोल है, घर के अंदर हमारा
पति का रोल है, पुत्र का रोल है, बच्चे का रोल है, पत्नी का रोल है, या ऑफिस में जाते हैं तो बॉस बनते हैं, हम सबॉर्डिनेट होते हैं, पीयर्स होते हैं, समाज के अंदर मित्र होते हैं। हर जगह हमारे जहाँ पे भी है रोल्स हैं, और वो रोल के अंदर हमारी एक सर्टेन ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसमें एक्सीड द एक्सपेक्टेशन करेंगे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे। अगर आपने देखा होगा कि हम पानी पूरी खाने जाते हैं और 6 पानी पूरी ली, तो हम एक एक्स्ट्रा पूरी उससे लेना चाहते हैं, सूखी पूरी दे दे भैया, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा दे दे, और जो देता है तो हम उसके पास बार बार जाते हैं। तो जब भी अगर ज़िंदगी में आपसे जो एक्सपेक्टेड है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मतलब कीमत बनी रहेगी, आपकी वैल्यू बनी रहेगी, और आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आने का प्रश्न ही नहीं होता है। उसके बाद में मैं लेना चाहूँगा अर्न मोर। बहुत से लोग बाग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा शरीर, आज के ज़माने में पैसा शरीर में ब्लड के समान है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप मतलब लाइफ को हैप्पीली नहीं जी सकते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको टाटा और अंबानी होना है, लेकिन एक रीजनेबल पैसे की हर एक को ज़रूरत है, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने की ज़रूरत है, और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठीक है, हम इसमें भाग्य भी काम करता है, लेकिन एक आदमी अगर मेहनत करे और पैसा कमाए तो वो उसके लाइफ के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ख़त्म हो जाती है कि नहीं, हम कुछ और करेंगे। अरे भाई, अगर आपके अंदर पैसा कमाने की ताकत दी है तो आप पैसा कमाइए, और अगर आपकी ज़रूरत कम है तो आप समाज का भला करने की कोशिश कीजिए, वो लोगों को देने की कोशिश कीजिए, लोगों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश कीजिए। तो मतलब पैसे को एविल समझना गलत होगा। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। फिर मैं आपको 8वां पिलर लेना आई थिंक 9th पिलर है कि गिव बैक। ओके, आपने ज़िंदगी में जब आप इस दुनिया के अंदर आए तो आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में मिली है। ये रोड्स मिली है, आपको स्कूल्स मिली है, हॉस्पिटल्स मिले हैं, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। और आप जब जाएंगे तो आप कुछ छोड़ के जाएंगे। तो आपको ज़िंदगी में जो कमाया है, चाहे नाम, चाहे इज्जत, चाहे पैसा, चाहे, तो आप कुछ वापस सोसाइटी को देने की कोशिश कीजिए। आपको मालूम ही होगा कि मैं भी एक NGO चलाता हूं, जिसके अंदर हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको स्कूल सामग्री है। आजकल हमने टैबलेट देना चालू किया है। ऑलमोस्ट करीब 75 बच्चों को हमने टैबलेट बांटे हैं, जिससे कि वो आज के ज़माने में ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। तो कुछ भी एरिया में कर सकते हैं आप। हेल्थ एरिया में कर सकते हैं आप, एजुकेशन के एरिया में कर सकते हैं आप, एनवायरनमेंट के एरिया में कर सकते हैं। ट्राई टू गिव समथिंग बैक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं सेकेंड लास्ट लेना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी प्योरीफाइज। ना आजकल मैं किसी को भी पूछता हूँ, भैया आप रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल है, तो आजकल लोग बाग रिलीजियस नहीं कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं। क्योंकि हमारे जितने भी रिलीजन हैं उसके अंदर इतने विकार या इतने दोष आ गए हैं कि कोई भी आजकल अपने आप को रिलीजियस कहने में शर्म महसूस करता है या उसको हिचकिचाहट होती है। लेकिन स्पिरिचुअल बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब कई लोगों को मालूम ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ना आत्मा का अध्ययन करना एक लाइफ में इतना ज़रूरी है कि उसका कारण ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। ये आपके जब नॉर्मली जब आपकी ज़रूरतें पूरी होने लग जाती है, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चों की शादी वगैरह हो गई, या जो भी आपकी जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई, तो आप जानना चाहते हैं यार मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मैं क्यों हूँ। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शरीर अलग है, ये मेरी आत्मा अलग है, ये जो भी ज़िंदगी में हो रहा है वो कर्मों की थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। अलग अलग रिलीजन अलग अलग बात करते हैं, ठीक है, आपका जो रिलीजन है आप उसके अनुसार बात कीजिए, लेकिन जानने की कोशिश कीजिए। समथिंग हायर देन व्हाट यू आर, उसको जाने बिना मतलब मुक्ति संभव नहीं है।
तो उसके बाद में मैं लास्ट में लेना चाहूँगा कि ये सब हमें क्यों करें। तो मेरे को कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, तो मैं कहूँगा सेकंड पर्पज़ इज़ माय हैप्पीनेस, द फर्स्ट इज से मे बी गोइंग टू द मोक्ष, विच बहुत से जने नहीं मानते हैं, उस कोई बात नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस हर ह्यूमन बीइंग का गोल है। और अगर उसने अपने हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप को, अपने मॉनेटरी एस्पेक्ट को, अपने वर्क को अगर अच्छे से मैनेज किया है तो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आना स्वाभाविक है और अवश्यंभावी है। तो आपको हैप्पीनेस के लिए काम करना, आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे कि आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाए। कई बार हम शॉर्ट टर्म में लालच के चक्कर में लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी हैप्पीनेस को खो देते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले ये देखिए, चाहे जॉब का डिसीजन हो, चाहे शादी का डिसीजन हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने का डिसीजन है, तो क्या मेरे को इससे हैप्पीनेस मिलेगी क्या? तो हैप्पीनेस शुड बी योर अल्टीमेट गोल। So these are the 11 pillars which I will repeat for a second, that health first, learning must, love all, think positive, dream big, act quick, exceed the expectation, earn more, give back, spirituality purifies and pursue happiness. So ये मेरे 11, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो I will be happy to answer. एक सवाल ये है जो आजकल के युवाओं के मन में चल रहा है कि अभिषेक बच्चन हैज़ अ फादर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो इंडस्ट्री में एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो सर किस चीज़ को तवज्जो दें, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें? क्या लोगों को मौके नहीं मिलते? उसका रीज़न ये है, मतलब रीज़न क्या है पीछे, कि लक काम नहीं करता, मेहनत में कमी हो जाती है, क्योंकि लोग मेहनती भी होते हैं, ऐसा नहीं है, या फिर उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है? तो क्या है सर सक्सेस का मंत्र, इसको किस तरह देखें? आपने जीवन जीने के तो बता दिए, लेकिन जीवन में सक्सेस पाना बहुत लोगों के लिए, सब जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सक्सेस होती है सर। राइट है, लेकिन सक्सेस या सफल को सक्सेस मतलब सफल कहते हैं हिंदी में। सफल मीन्स आपको फल मिलना, आपने कोई एफर्ट्स किए और उसका आपको फल मिले। तो आपने जो एफर्ट किए उसका आपको फल मिलता है। अब सक्सेस की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा मिसलीडिंग है, या मतलब हर एक के लिए सक्सेस अलग अलग है। अभिषेक, मेरे अगर मान लो एक आप आम आदमी से देखेंगे तो अभिषेक बच्चन बहुत अच्छा है, बट अगर हम उसको अमिताभ बच्चन से कंपेयर करेंगे तो हमको लगेगा कि यार ओके ही इज़ नॉट सक्सेसफुल। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसके पास में वो बहुत कुछ है जो बिलियंस ऑफ लोग वो पाना चाहते हैं। ही इज़ ऑलरेडी हैविंग। सो सक्सेस इज़ वेरी रिलेटिव टर्म। तो लेकिन ये है कि सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि आपके एफर्ट्स होने चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत लक होना चाहिए। अगर ये कोई सोचे कि मैं एफर्ट्स बहुत कर लूँगा और लक नहीं है तो भी चलेगा, तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और आपके पास में लक है लेकिन एक एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो भी आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें किसकी परसेंटेज वगैरह मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, इट्स अ वेरी मिसलीडिंग काइंड ऑफ थिंग इज देयर। सो आप एफर्ट करते रहिए, एक बार सक्सेस तो जरूर मिलेगी। सर इज देयर समथिंग कॉल्ड इजी मनी? मेरे हिसाब से इजी मनी कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन ऐसे है कि जैसे कि वही वापस एग्जांपल लूँगा कि अमिताभ बच्चन जी के यहाँ पे अभिषेक बच्चन पैदा हो गए, या मुकेश अंबानी जी के यहाँ उनके बच्चे पैदा हो गए, आकाश जी पैदा हो गए, तो उनको इजी मनी मिल गई। तो इजी मनी आपको लक से मिलती है, लेकिन अगर आपको अर्न करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर लोगों के पास इंटेलेक्ट होना चाहिए या जीवन जीने का सलीका? आपके पास इंटेलेक्ट है और जीवन जीने का सलीका नहीं है तो वो इंटेलेक्ट क्या काम की। तो अगर इंटेलेक्ट होगा तो जीवन जीने का सलीका तो होगा ही, लेकिन अगर आपका जीवन जीने का सलीका है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है, ये मैं मानता नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास इंटेलेक्ट है तो जीवन जीने का तरीका आएगा ही, नहीं तो फिर इंटेलेक्ट ही नहीं है ना वो। तो इसलिए इंटेलेक्ट, अगर मैं 11 पिलर में से ये आप मेरे को पूछेंगे कि एक पिलर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं इंटेलेक्ट कहूँगा। ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ज्ञान से ही सब कुछ फ्लो होगा, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपकी वर्क है, एवरीथिंग। अगर ज्ञान नहीं होगा
तो आप बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते जिंदगी सर में। कुछ लोग धर्म की राह पे चलते हैं, कुछ लोग करियर बनाने की राह पे चलते हैं, कुछ लोग एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सर ना पिज़्ज़ा हट है ना मैकडॉनल्ड्स है, कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं और वो इसमें खुश हैं। सर हैप्पीनेस का रियल मंत्र क्या है? हैप्पीनेस का रियल मंत्र है कि मेरे को प्रेजेंट में रहना है। मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मेरे पास प्रेजेंट के अंदर मेरी फैमिली क्या डिमांड कर रही है, मेरी खुद की क्या डिमांड्स है, मैं किस जगह काम कर रहा हूँ उनकी क्या डिमांड्स है। मतलब आपको प्रेजेंट में रहेंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। आप पास्ट में रह के हैप्पी नहीं रह सकते, आप फ्यूचर में रह के भी हैप्पी नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट का मतलब नहीं है, पास्ट से हमको लर्निंग मिलती है, फ्यूचर से हमको डायरेक्शन मिलता है, लेकिन आपको रहना प्रेजेंट के अंदर है। अगर आप प्रेजेंट में ही खुश नहीं रहेंगे तो आप सोचोगे कि यार मेरे को मर्सिडीज़ कार मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे को इतना बड़ा बंगला मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको मर्सिडीज़ कार मिलेगी तो फिर आपको लैम्बोर्गिनी लेने की इच्छा होगी, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपकी मतलब इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं के पीछे प्रेजेंट की हैप्पीनेस को खराब करने से आप कभी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं रह सकते। सर 11 पिलर्स, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सर आपने ये 11 पिलर्स बनाए हैं, इन 11 पिलर्स में से कौन सा एक ऐसा पिलर है जो नहीं भी रहेगा तो चलेगा? नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी पिलर नहीं भी रहेगा तो चलेगा। बट ठीक है, लाइक जैसे आपने गिव बैक है, सोसाइटी को नहीं दिया, तो कोई आपका आके गला नहीं पकड़ने वाला है। आप मस्ती में हैं, अपने हैप्पी ये रह रहे हैं, आपने सोसाइटी को नहीं दिया है ना, ठीक है, मैं अब उसमें नहीं जाऊंगा कि उससे आपका अगला जन्म खराब हो जाएगा, वो सब फिर बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। लेकिन अभी जैसे बहुत से लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं या धार्मिक नहीं होते हैं, तो इतनी कोई वो ज़रूर नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि 3 पिलर ऐसे कौन से हैं जो कि बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मैं 3 पिलर जरूर कहना चाहूँगा। वो सबसे पहला पिलर जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ज्ञान मीन्स एनहेंस योर विजडम कंटिन्यूसली टिल डेथ। यू मस्ट कीप लर्निंग 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 लर्निंग, दैट इज द नंबर 1 पिलर। सेकेंड पिलर है कि लव ऑल, क्योंकि प्रेम होने से ही आपकी रिलेशनशिप अच्छी रह सकती है। अगर ज़िंदगी में प्रेम नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी है कि जो अपने हैं उनसे हम प्रेम नहीं करते हैं, राह चलते से प्रेम करते हैं, दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। लेकिन जो अपने हैं उनसे प्रेम कीजिए। और जो तीसरा है डू योर ड्यूटी, मीन्स आपकी जो ड्यूटी है उस पर्टिकुलर रोल के अंदर, उस रोल को निभाने की कोशिश कीजिए। बहुत सी बार ऐसा है जैसे सास और बहू का झगड़ा है, तो बहू कहेगी कि यार सास तो मुझे प्यार नहीं करती है तो मैं क्यों उसका रिस्पेक्ट करूं। अरे भाई, वो प्यार नहीं करती है, वो उसके कर्म फूटे, वो जाने, लेकिन तेरा कर्तव्य है, तेरी ड्यूटी है कि तू उनकी सेवा कर, तू उनका रिस्पेक्ट कर। या सास का कर्तव्य है कि भाई वो बहू कुछ करे नहीं करे, तुमको उसको प्यार से रखना, अपनी बेटी की तरह समझना है। सो कहने का मतलब हर रोल में अगर हम ये कहेंगे ये मुझे ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वो ठीक नहीं। आपका जो रोल है, मेरे को बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया तो मैं क्यों काम करूँ, है, अरे भाई तेरे को सैलरी तो मिल रही है ना। तो अपना रोल पहचानो और उसको पूरा करने की कोशिश करो। सर आज 11 पिलर्स हमको जानने को मिले जीवन के बारे में। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें ये बातें बताई। उम्मीद है कि देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इसे शेयर करेंगे बहुत सारे लोगों तक, अपने जीवन की शैली बदलेंगे, अपने जीवन को एक सफल और प्रफुल्ल जीवन बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी ये जो 11 पिलर्स हैं इस पर कायम रहने की कोशिश करेंगे। आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेमंत अरोड़ा सर से हुई मुलाकात इन राज की बात, लेकिन राज की बात में ये है राज की बात क्या है, वो जीवन की बात जो शायद जावेद अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी लिखी। एक रोटोमैक नाम का पेन आया था, उसका जब लॉन्च हुआ था तो वो उस समय का एक सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट था। अब रोटोमैक पेन अगर है तो इसकी पब्लिसिटी हो गई होगी, आई एम श्योर, लेकिन वो जो चीज़, जो कविता छोटी सी जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी, वो बड़ी लोगों के दिल को छुई थी और लोगों ने जाके वो पेन इसीलिए ख़रीदा था। और वो बोल इस तरह थे कि ज़िंदगी हैं तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है।
आप ज़िंदगी से फाइट मत कीजिए, आप ज़िंदगी को जिएँ, ज़िंदगी को ये 11 पिलर्स से जिएँ जो आज हेमंत हुडा सर ने हमें सिखाए हैं। उम्मीद है कि आप ये ज़िंदगी को जीने की और अच्छी कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सभी पॉइंट्स में लगा, वो एक पॉइंट था जो मेरे दिल को छुआ और मुझे ऐसा लगा कि हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है, वो है गिव बैक की। क्योंकि हमें समाज बहुत कुछ देता है, लेकिन जाने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों में कमी कर देते हैं। 2 अक्टूबर के दिन बहुत सारे ब्लड कैंप्स होने वाले हैं नागपुर शहर में। टाइम टू गिव बैक, थोड़ा सा खून दे दें और किसी की ज़िंदगी बचा लें खून देने से, है ना। कल मिलते हैं फिर से ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और अपने परिवार को भी ज़िंदगी जीने के 11 पिलर्स सिखाएं और जिंदा रहें। जय हिंद।